Hello and welcome to today's session. Myself, Professor Roshan Yerne from Electrical Department, NIT Polytechnic, Nagpur. So student, today we learn the 3.5, that is armature winding related terms. In last lecture, we already learned about how the alternator should be work, यानी जो वर्किंग है अल्टरनेटर की अपन ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं. इस लेक्चर में हम आर्मेचर वाइंडिंग के रिलेटेड टर्म्स देखने वाले, यानी आर्मेचर वाइंडिंग किस तरीके से होती है ये हमें इस लेक्चर में हमें देखना है. सो लेट अस स्टार्ट अ वीडियो विद फर्स्ट कोर्स आउटकम and learning outcome. The course outcome is use the relevant three-phase alternator for different load conditions, and the learning outcome are after completing this video you should be able to understand about armature winding related terms of three-phase alternator and understand about the various types of the armature winding. So first we map this topic with a program outcome, so PO. So there are total 10 PO, so this table will be shows the program outcome mapping. So in this table the PO1 will be satisfied by this topic because here we learn the some basic knowledge of branch, electrical branch. Then PO2, here also we again some specified for the electrical branch related data. Then we related with the PO9, that is communication, we each will communicate with this topic, and the PO10, that is for the lifelong learning, because this topic is useful for the lifelong learning for your future. Then it will be specified with a program specific outcome, that is 2 PSO2, because the PSO2 is nothing but specified to the electrical machine. So this topic is related to the electrical machine. So let us start a video with the first, that is the armature winding. Now how the armature winding will be shows? So this diagram will be shows the armature winding. This is the single turn armature winding and it is the multi turn armature winding, जिसमें मल्टी टर्न जो है ये मल्टी टर्न कंडक्टर रखे हुए हैं जो एक कॉइल बनाया हुआ है, और उस कॉइल का एक सिंगल टर्न जो लिया जाता है जिसको बोला जाता है थ्रेड. ठीक है, तो इसके अंदर कौन से टर्म जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ये हमें इस वीडियो में देखना है. सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टर्म, दैट इज अ कंडक्टर. सो कंडक्टर यानी क्या है? सो द कंडक्टर इज नथिंग बट कॉल्ड एज, इट इज द पार्ट ऑफ अ वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन आर्मेचर स्लॉट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस द ईएमएफ. यानी ये एक प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग का पार्ट है जो कि स्लॉट में प्रेजेंट होता है. ये देखिए स्लॉट, इस स्लॉट में जैसे एक पूरा कॉइल होता है वाउंड किया हुआ, उस कॉइल का एक सिंगल थ्रेड पकड़ लीजिए, उस सिंगल थ्रेड का जितना पोर्शन आपका स्लॉट के अंदर होता है उतने पोर्शन को बोला जाता है कंडक्टर. नाउ व्हाट इज द टर्न? टर्न इज नथिंग बट दैट द कंडक्टर विल बी पुट इन अ स्लॉट. तो दो नियर स्लॉट के बीच में अगर यहाँ पे कंडक्टर पुट किया है और दोनों कंडक्टर को अगर ज्वाइंट किया हुआ है, यानी एक सिंगल का ये पूरा कॉपर का वायर, तो दैट सिंगल कॉपर वायर इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ टर्न. तो दिस इज कॉल्ड एज अ सिंगल टर्न. A conductor placed in a one slot which vein is connected to the another conductor in a different slot form a टर्न. ये एक प्रकार का टर्न बनाता है. नाउ कॉइल, कॉइल यानी क्या है? तो जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स का ग्रुप किया जाता है, जैसे यहां पे देखिए नंबर ऑफ टर्न्स का क्या किया है? ग्रुप किया है. सो ईच वाइंडिंग हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स. अ नंबर ऑफ टर्न्स आर ग्रुप टुगेदर एंड टू फॉर्म अ coil, and such a coil is nothing but called as a multi-turn coil. और इसी coil को हम क्या बोलते हैं? multi-turn coil बोलते हैं. Now what is the coil side? The coil side is nothing but called as a, when the multi-turn coil is present in a slot, यानी number of conductor इन सब पूरे कंडक्टर को मिला के एक यहाँ पे जो स्लॉट के अंदर बना हुआ जो पोर्शन होता है, that is called as a coil side. यानी a multi-turn coil consists of the many turns so that the part of the coil which is this in each slot is called as a coil side. It is nothing but the group of conductor present in a slot. यानी जितने slot के अंदर जितने number of conductor present होते हैं, अगर इनका सारे conductor का अगर group बनाएंगे, so that group is nothing but called as a coil side.
Now the next term after the coil side is a pole pitch. Now what is the pole pitch? The center to center distance between the two consecutive slots. यानी ये जो slot 1 है और ये दो slot 2 है, इन दोनों के बीच में जो अपना जो कॉन्सिक्यूटिव जो यानी पास का नियर बाय जो स्लॉट है, इन दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी इस स्लॉट से लेकर इस स्लॉट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है, उस डिस्टेंस को बोला जाता है पोल पिच. एंड दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट गिवन बाय द पोल पिच इज गिवन बाय n इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल. यानी किसी अल्टरनेटर का अगर आपको पोल पिच अगर फाइंड आउट करना है, तो ये पोल पिच अगर फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ स्लॉट करेंगे और डिवाइड बाय करेंगे उसको नंबर ऑफ पोल से. अगर सिंपल अगर पोल पिच अगर अपन बात करते हैं, तो पोल पिच हमेशा मैक्सिमम 180 डिग्री का होता है. ठीक है, 180 डिग्री का पोल पिच रहना ही चाहिए, तब जाके वो कॉइल जो है वो परफेक्ट होती है. यानी दो स्लॉट के बीच में मैक्सिमम जो एंगल है वो कैसा होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए. देन द नेक्स्ट वन इज अ स्लॉट एंगल. द स्लॉट एंगल इज नथिंग बट द एंगल सस्पेंडेड बाय वन स्लॉट इज कॉल्ड एज अ स्लॉट एंगल. यानी जो अपना जो स्लॉट होता है, यानी स्टेटर के अंदर जो स्लॉट होता है, उस स्टेटर को ये अगर स्लॉट कुछ एंगल से सस्पेंडेड होगा, यानी कुछ एंगल से इस बना हुआ रहेगा, सो दैट एंगल इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ स्लॉट एंगल एंड इट इज गिवन बाय 180 डिग्री इनटू पोल डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट. ये अपने को जब अपन ईएमएफ इक्वेशन देखेंगे और ईएमएफ इक्वेशन के न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करेंगे, उस वक्त हमें इन फार्मूलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है कि पोल पिच का क्या होता है और स्लॉट एंगल क्या होता है. अगर फुल पिच वाइंडिंग है तो 180 डिग्री का रहेगा, अगर उससे शॉर्ट पिच वाइंडिंग है तो उसे मिनिमम रहेगा. ये आगे अपन देखेंगे आर्मेचर वाइंडिंग के टाइप्स में. ठीक है, सो दीज आर द ऑल रिलेटेड टर्म्स जो कि आप लोगों ने देखे हैं. टोटल 8 टर्म्स है टोटल 6 टर्म्स है जो अपन ने देखे हैं आर्मेचर वाइंडिंग के: कंडक्टर, टर्न, कॉइल, कॉइल साइड, पोल पिच एंड स्लॉट एंगल. Now next let us see what are the types of armature winding is present. So in a alternator there are the 3 types of the armature winding mostly present होती है. एक single layer winding and double layer winding, second concentric winding and distributed winding, and the third one that is a full pitch and short pitch winding. The maximum times जो वाइंडिंग अपने को यहाँ पे मिलती है या अल्टरनेटर में जो सबसे मैक्सिमम वाइंडिंग जो यूज की जाती है, वो यूज की जाती है डबल लेयर वाइंडिंग और शॉर्ट पिच वाइंडिंग. डबल लेयर वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड शॉर्ट पिच वाइंडिंग, ऐसी वाइंडिंग अपने को क्या होता है, यूज किया जाता है अल्टरनेटर में. ठीक है, सो नाउ let us see the single layer winding and double layer winding. So single layer winding, this is the shows the single layer winding and this shows the double layer winding. single layer winding में क्या होता है, एक स्लॉट के अंदर एक ही कॉइल प्रेजेंट होती है. तो डबल लेयर वाइंडिंग में क्या होता है, एक स्लॉट के अंदर 2 वाइंडिंग प्रेजेंट होती है. और 2 वाइंडिंग जब अपन प्रेजेंट करते हैं तो इन 2 वाइंडिंग के बीच में ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये क्या करता है, एज अ इंसुलेशन करके अपन एक इंसुलेशन लेयर लगाते हैं. पेपर का हो गया या अपन मोस्टली बोलते हैं पेपर, कार्डबोर्ड, कोई भी इंसुलेशन यहाँ लगाया जाता है और एक स्लॉट में क्या किया जाता है, 2 वाइंडिंग यूज किया जाता है. ठीक है, अब ये वाइंडिंग कहाँ पे इस्तेमाल होती है, जहाँ पे अपने को नंबर ऑफ वाइंडिंग ज़्यादा लगाना पड़ता है. जहाँ पे नंबर ऑफ वाइंडिंग ज़्यादा है और स्लॉट कम है, तो स्लॉट कम होने की वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ वाइंडिंग जो है वो फिट होने चाहिए. इसलिए एक ही स्लॉट में क्या करते हैं, 2 वाइंडिंग रखते हैं. तो यहाँ पे एक स्लॉट में क्या होती है, एक वाइंडिंग. यानी अगर एक टर्न अगर पूरा कंप्लीट करना है तो यहाँ पे कितने स्लॉट लगेंगे, आपको 2 स्लॉट. अगर यहाँ पे अगर आपको अगर एक टर्न पूरा कंप्लीट करना है तो आप एक स्लॉट के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो और साथ में आप 2 स्लॉट के अंदर 2 टर्न कंप्लीट कर सकते हो. यानी डबल लेयर वाइंडिंग में आपके नंबर ऑफ टर्न्स यानी नंबर ऑफ कॉइल क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट के बराबर रहते हैं. तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल जो होते हैं यहाँ स्लॉट के कैसे हो जाते हैं, हाफ. यानी अगर आपको पास अगर 6 सम्मान लेते हैं, अगर 6 स्लॉट है, ठीक है, और 6 स्लॉट में आपको क्या करना है, कॉइल जो है हर एक कॉइल के लिए आपको देखना है कि कितने फेज है, टोटल 3 फेज के लिए. तो 3 फेज के लिए आपके लिए स्लॉट कितने हो जाएगा, एक फेज के लिए 2 स्लॉट हो जाएंगे. तो 2 स्लॉट अगर एक फेज के लिए है सिंगल लेयर वाइंडिंग में,
ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्लॉट हो जाते हैं एक फेज के लिए। अब उन 2 स्लॉट में क्या आ रहा है, वाइंडिंग कैसे आएगी, हाफ, यानी एक स्लॉट में एक वाइंडिंग आएगी। ठीक है। तो डबल लेयर में वहीं पे अगर डबल लेयर देखते हैं तो क्या होगा, डबल लेयर में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्लॉट अभी क्या है 6। ठीक है। ईच फेज के लिए कितना हो जाएगा, हर फेज के लिए हमें 6/3, यानी एक फेज के लिए हमें कितने स्लॉट लगने वाले हैं, 2। अब उन 2 स्लॉट को हम क्या करेंगे, उसमें कॉइल कितनी पुट करेंगे, डबल लेयर में। डबल लेयर में पुट करेंगे तो कितनी कॉइल पुट हो जाएगी, 4 कॉइल पुट होंगे, यानी यहाँ से 1 टर्न, दूसरा 1 टर्न, तो इस तरीके से अपने 2 टर्न कंप्लीट हो जाएंगे 2 स्लॉट में। ठीक है। यानी जितने नंबर ऑफ कॉइल्स है उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, स्लॉट्स रहेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से डबल लेयर वाइंडिंग यूज किया जाता है और इस तरीके से सिंगल लेयर वाइंडिंग। तो हमेशा जो अल्टरनेटर होता है, ये अल्टरनेटर आपको डबल लेयर वाइंडिंग में ही मिलता है, क्योंकि हमें मैक्सिमम टर्न्स मिल जाते हैं, मैक्सिमम कॉइल मिल जाता है, मैक्सिमम वाइंडिंग मिल जाता है अगर हम डबल लेयर वाइंडिंग की वाइंडिंग अगर यूज करते हैं एज अ आर्मेचर वाइंडिंग इन अ अल्टरनेटर। ओके। सो ये तो था सबसे पहला टाइप, सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है। सो इन नेक्स्ट वीडियो हमें इसके आगे के जो टाइप्स है वो हमें पढ़ना है, दैट इज कॉन्सेंट्रिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एंड द शॉर्ट पिच वाइंडिंग एंड फुल पिच वाइंडिंग। यानी फुल पिच वाइंडिंग कैसे होती है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग कैसे होती है, देन कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होता है, ये हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है। सो अभी तक इस वीडियो में हमने आर्मेचर वाइंडिंग के रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़े, देन उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग पढ़े, यानी कितने टाइप्स के आर्मेचर वाइंडिंग है ये हमने देखे। देन देयर आर द वन असाइनमेंट क्वेश्चन, ये आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सिंगल टर्न अल्टरनेटर। आपको क्या करना है, सिंगल टर्न अल्टरनेटर की क्या करना है, वर्किंग आपको देखना है। ओके। सो ये एक असाइनमेंट क्वेश्चन है, साथ में इसके साथ आपको दूसरा एक असाइनमेंट भी आपको मैं दे रहा हूँ। दूसरा असाइनमेंट ये है कि आपको ये जो मल्टी टर्न जो कॉइल्स है, ठीक है, यानी जो मैंने आपको 6 डेफिनेशन बताया, कंडक्टर, कॉइल साइज, टर्न, पोल पिच, कॉइल एंड स्लॉट एंगल, इन सारों की डेफिनेशन आपको लिखना है। इन नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट द और रिमेनिंग टाइप्स, जो रिमेनिंग टाइप्स है, इन रिमेनिंग टाइप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आर्मेचर वाइंडिंग के, जो कि कॉन्सेंट्रिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, और दूसरा है फुल पिच एंड शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ओके। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।